Assalamu alaikum. I'm Dr. Imbisat Maheen Syed. I'm Vice President of National Society of Women in Science and Technology, Pakistan. I'm also a mentor for women in STEM. And besides that, I'm also a medical humanities writer and advocate in Pakistan. I've written various scientific papers and articles regarding awareness on COVID-19 in particular and medicine and surgery in general in various national and international journals, newspapers, and magazines. In reference to this conversation that we are going to have today on COVID-19, I would like to extend out my special thanks to the international faculties whom I consulted on the topic of today's discussion, and a special thanks to Dr. Victoria, who is an expert of fetal and maternal medicine, and she was of a great help for me in researching the depths and insights on the subject. So a special thanks to the international faculties who were very helpful in formulating today's content. The chances of pregnant women getting or catching COVID-19 pandemic is the same as anybody else would. However, if there's a lady who's pregnant and she also is infected by COVID-19 infection, by coronavirus infection, the chances and the propensity for her symptoms to deteriorate very quickly are definitely higher than a non-pregnant woman. Because as you know, that during pregnancy, the height of the abdomen is raised, the height of the diaphragm is higher, and because of that, if a lady is already suffering from the complications of COVID-19 infection, she can have some kind of respiratory distress. तो ये चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए कि जहाँ तक ये बात है कि लग सकता है तो लगने की तो शरह उनके लिए उतनी ही होगी जितनी किसी एक आम इंसान की, लेकिन जहाँ तक उसकी पेचीदगियों का सवाल है तो हामिला ख़वातीन में उसकी जो पेचीदगियाँ हैं वो बनिस्बत एक आम इंसान के डेफिनेटली ज़्यादा होंगी। और इस सिलसिले में ये भी हो सकता है कि आपकी जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं या आपकी जो ऑब्स्टेट्रिशियन हैं वो एक अर्ली डिलीवरी प्लान करें, क्योंकि अगर सांस लेने में कोई दुश्वारी होती है और जो भी मौजूदा पेचीदगियाँ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है कि आपकी जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो एक अर्ली डिलीवरी जो है वो प्लान करें, आपकी दीगर तमाम तर हालत देखते हुए और बच्चे की वायबिलिटी देखते हुए। Pregnant women, for them, we would recommend, in the light of evidence, the same precautions that anybody else would take. That includes overall good hygiene, hand hygiene, and masking and maintaining social distance. But besides that, 2 weeks prior to the delivery or at the time of the delivery, a lady might like to discuss this with her gynecologist regarding the shielding options for her. एंड यही तमाम तर चीज़ें हैं जो हम किसी भी एक आम इंसान को जो हम रेकमेंड करते हैं एहतियाती तदाबीर, वही तमाम तर एहतियाती तदाबीर हम एक प्रेग्नेंट खातून को भी रेकमेंड करेंगे कि वो हाथों की सफाई का ख्याल रखें, अपने मास्क का इस्तेमाल कीजिए, लोगों से समाजी फासले को जो है वो मेंटेन रखिए। और एक चीज़ बहुत अहम जो हमारे ख़त्ते में बिलखुसूस है वो ये कि जहनी सेहत के ऊपर आम तौर पे बात नहीं की जाती है। तो बिसाइड्स दीज थिंग्स के जहाँ तक आप अपनी सेहत का ओवरऑल ख्याल रख रहे हैं वहाँ आपने अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। तो अगर किसी भी किस्म की कोई आपको लगता है कि डिप्रेशन या एंजाइटी इस तरफ अगर आप जा रही हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए इस मुतालिक, क्योंकि आपको अपनी सेहत को हर जाविये से उसका ख्याल रखना है। Well, all women who would be checking into any hospital facility for their delivery and for their admission definitely would be tested for COVID-19 prior to their admission. And besides that, your gynecologist or your doctor might ask you to get yourself tested for COVID-19 at any step during your pregnancy. और ये चीज़ हमारे लिए समझनी बहुत ज़्यादा अहम है कि बहुत सारे लोग अपना COVID-19 का टेस्ट करवाने से कतराते हैं, मगर बिलखुसूस हामिला ख़वातीन के लिए और किसी भी एक आम इंसान के लिए बात समझनी ज़रूरी है कि COVID-19 का टेस्ट जो है वो आपकी अपनी सेहत के लिए बहुत अहम होता है। जैसे बिलखुसूस प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि जब वो अपना COVID-19 का टेस्ट करवाती हैं प्रायर टू देयर डिलीवरी एंड प्रायर टू देयर एडमिशन,
तो वो उनको एक प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा फ़राहम करता है, क्योंकि हामिल ख़वातीन को, प्रेग्नेंट ख़वातीन को ज़्यादा केयर की और ज़्यादा सर्वेलेंस की ज़रूरत होती है। तो उस लिहाज से आपके जो डॉक्टर्स होंगे वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होंगे कि खुदा न खास्ता अगर आपको पहले से कोविड-19 का इन्फेक्शन है, तो खुदा न खास्ता उसके नतीजे में होने वाली पेचीदगियाँ और उन पेचीदगियों से निमटने के लिए पहले से आपकी जो मेडिकल टीम होगी वो प्रिपेयर्ड होगी। और दूसरी अहम बात यह है कि जब आप कोविड-19 के लिए पॉजिटिव होते हैं, अगर आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन अगर आपका पॉजिटिव आता है, तो उस सूरत में जो आपके डॉक्टर्स होते हैं, जो आपके अस्पताल का अमला होता है, वो ज़्यादा एहतियाती तदाबीर लेते हैं आपके लिए भी और अपने लिए भी। उसके लिए जो PPEs होती हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा ख़ास तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। सैनिटाइजेशन का और एनवायरनमेंट का ज़्यादा बेहतर ख्याल रखा जाता है, ताकि वो दूसरे मरीज़ों में भी मुंतकिल ना हो। तो इन चीज़ों के मद्देनज़र हमारे लिए अहम है ये बात समझना कि अगर आपके डॉक्टर, आपके मौलिज अगर आपको रेकमेंड करते हैं कोविड-19 का टेस्ट, तो बर वक्त ज़रूर कराइए। और उसके अलावा जो भी प्रेगनेंसी के टेस्ट्स हैं, स्कैन्स हैं, उनमें किसी भी तरह की डिले ना कीजिए। In the presence of existing evidence, there are certain case reports that have shown that there is a vertical transmission, that is a transmission of the infection from the mother to her unborn child. However, there are only few reported cases, and from an overall perspective, the chances of every mother passing down the infection to her child are definitely much smaller. And as much as there's concern regarding if a lady should touch her newborn child or not, well, the answer to that is that yes, definitely she should have skin to skin contact with her baby by following precautions such as masking and hand hygiene. And besides that, the thing that's really important for the baby is to get enough immunity through his or her mother's milk. So feeding your baby, feeding your child, even if you're infected with COVID-19 infection, is definitely important, and that should not be avoided. तो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल ना डरें कि लाजमी तौर पे यकीनन उनके बच्चे में मुंतकिल होगा, लेकिन हमारे पास चंद ऐसे केसेस मौसूल हुए हैं जिनके अंदर देखा गया है कि बिलखुसूस जो नए वेरिएंट्स हैं, जो नए टाइप्स हैं ऑफ कोरोना वायरस, उनका देखा गया है कि मुंतकिल हो सकते हैं। लेकिन जुज़वी तौर पे क्या हर माँ अपने बच्चे के अंदर मुंतकिल कर सकेगी इस वायरस को, इसके अब तक शवाहिद साइंसी बुनियादों पे मौजूद नहीं है। During pregnancy, definitely the precautions that we would suggest anyone, that includes hand hygiene, overall maintenance of good hygiene, and masking and social distancing, is definitely something that should be practiced by a pregnant woman or just by anybody else. But besides that, scientifically we have seen that there is direct correlation between changes in the CTG and coronavirus infection. So if there's a mother who is already infected by COVID-19 infection, the possibilities of changes in the CTG are definitely going to be higher. So during the birth, use of CTG is definitely very necessary. And besides that, all the scans and tests that you are recommended during pregnancy, you should follow them. You should not avoid face-to-face visits with your doctor if they're recommended to you. And because the chances of intrauterine growth retardation are higher in women who are infected with COVID-19 infection. So please do not avoid your ultrasound scans. And besides that, there are also higher chances of some kind of thrombotic events occurring in women who are pregnant and they're also infected with COVID-19 infection. तो आप अपनी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो पूरी कीजिए, और बिलखुसूस आपको वो तमाम तर टेस्ट और जो अल्ट्रासाउंड स्कैन्स जो आपके डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किए हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई आप में उसमें कोई डिले ना कीजिए, उसमें कोई देर ना कीजिए। और CTG जो कि एक दिल की धड़कन का आला होता है बच्चे का, वो बिलखुसूस ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है उन ख़वातीन में जो कि COVID-19 से इन्फेक्टेड हैं और प्रेग्नेंट। Not all women who are infected with COVID-19 infection and are also pregnant would undergo a cesarean section. However, if a lady is infected with COVID-19 infection and she is
she also has some other complications, or just in case if her condition is deteriorating, in that situation your gynecologist might plan an early delivery, may with or without cesarean section. So not all women who are infected with COVID-19 infection and who are also pregnant would undergo a cesarean section, but they can in certain situations. But again, that depends on your personal condition, और इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपने मौलद से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू कीजिए। तो इस तरह का कोई ख्याल रखना कि तमाम तर हामिला ख़वातीन जिनको जो है वो COVID-19 का इन्फेक्शन है, क्या वो तमाम तर ख़वातीन ऑपरेशन के ज़रिए ही डिलीवरी कर सकती हैं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हावेवर अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और किसी वजह से अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करती हैं कि COVID-19 की नतीजे में होने वाले इन्फेक्शंस के मद्देनज़र अगर उनको लगता है कि सिजेरियन करना पड़ेगा या कोई अर्ली डिलीवरी करनी पड़ेगी, जैसे अगर कोई सांस की दिक्कत होना शुरू हो जाए या और दीगर पेचीदगियाँ, तो उस सूरत में हो सकता है कि हो। लेकिन ये जवाब देना कि तमाम तर सिजेरियन के थ्रू होंगे, तो ऐसा कतई नहीं है। Well, WHO and all international organizations, they recommend that yes, women who are infected with COVID-19, they should feed their child. They should, those babies should be fed on mother's milk, on breastfeed, and the skin-to-skin contact of the child with the mother is very important for the development of the baby. And besides that, the most important thing for us to remember is that breast milk contains a lot of protection against infections. So if a mother, she continues to breastfeed her baby, definitely she's going to deliver all the goodnesses of that milk that's going to protect the baby against the infection. तो अगर आप अपने बच्चे को खुद फीड करा रही हैं तो डेफिनेटली उसको कंटिन्यू कीजिए और ज़रूर अपनी फीड दीजिए, क्योंकि कुदरत ने उसके अंदर कुछ ऐसे अज्जा और कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कुदरती तौर पे क़ुव्वत मुदाफ़ियत बच्चे का बढ़ाने में मदद देती हैं। मगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर आपको खांसी या नज़ला इस तरह से कोई अलामात अगर दरपेश हैं, तो फिर आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हैंड हाइजीन का ख्याल रखिए और फीड अगर करा रहे हैं तो कराते रहिए। तो आवाम को, लोगों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर इन केस खुदा न खास्ता अगर आप COVID-19 से इन्फेक्टेड हैं या अगर आपको शुबा है, तो एक तो आप अपने डॉक्टर्स से और अपने हेल्थ फैसिलिटी से ज़रूर रुजू कीजिए और किसी भी तरह की खौफ या डर को अपने जहन में ना रखिए कि अगर COVID-19 का इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि हमने चीज़ देखी है कि मीडिया में और बेशतर ज़रायों के ज़रिए जैसे व्हाट्सएप हो गया और दीगर चीज़ें हो गई, उनके अंदर काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है COVID-19 से मुतालिक। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आपकी गवर्नमेंट जो आपको प्रोटोकॉल्स बता रही है, जो आपको रिकमेंडेशंस दे रही है, उसको फॉलो कीजिए। अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ से और मौलिद से ज़रूर रुजू कीजिए। और एक बात हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा अहम होगी कि कभी कभार कुछ लोगों को हमारे कौम में और हमारी आवाम में इस चीज़ का गुमान होता है कि शायद साइंस जो है वो साइंटिस्ट्स की ज़ाती राय होती है। तो इसको मैं एक आसान अल्फाज में ज़रूर क्लियर करती चलूँ कि जो साइंस होती है वो हम शवाहिद की बुनियाद के ऊपर हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। हमें जो शवाहिद मिलते हैं, जिसको हम एविडेंस कहते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं, उसको उसकी रोशनी के अंदर पहले उन शवाहिद को जमा किया जाता है, फिर उनको टेस्ट किया जाता है और जो ठोस शवाहिद होते हैं वो फिर एक थ्योरी या किसी रिकमेंडेशन की सूरत में सामने आते हैं। तो इस तरह के जो हमारे ख्यालात जहन में उठते हैं कि पता नहीं साइंस है क्या बताया जा रहा है और हम क्या इन चीज़ों पे अमल दरामद करें ना करें, तो जो साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर जो हमारे पास जो शवाहिद मौजूद हैं, उनकी रोशनी के अंदर, उनकी अपने डॉक्टर्स की आरा की रोशनी में उनको ज़रूर सुनिए और उन पे ज़रूर अमल कीजिए। शुक्रिया।